بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈی ٹیچنگ۔ آج ہم 5th کلاس کے سائنس کا چھٹا چیپٹر لائٹ اینڈ ساؤنڈز کو سٹارٹ کریں گے، جو کہ پیج نمبر 73 پر موجود ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک اس میں ہے لائٹ یعنی روشنی۔ روشنی کیا ہے؟ یہ توانائی کی ایک حالت یا توانائی کی ایک قسم ہے دیٹ میکس اٹ پاسبل فار اس، یہ ہمارے لیے یہ ممکن بناتا ہے کہ ہم ارد گرد کی چیزوں کو اس کی مدد سے دیکھ سکیں۔ روشنی توانائی کی وہ قسم ہے جس کی مدد سے ہم ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کائنات میں روشنی کا یا توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ سن یعنی سورج ہے۔ سورج کی روشنی کی مدد سے زمین پر جاندار یا زندگی یہ ممکن ہے۔ سورج کی روشنی کی مدد سے پودے اپنا خوراک بنا سکتے ہیں، فوٹوسینتھسس کی مدد سے، تو پودے سورج کی روشنی کی مدد سے زندہ رہتے ہیں۔ پھر جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور پودوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی استعمال کرتے ہیں اور ان سے اپنا خوراک حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تمام جانداروں کا زمین پر زندہ رہنا سن لائٹ، سورج کی روشنی کی مرہونی منت ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ کائنات میں تیز ترین چیز جو ہے وہ روشنی ہے۔ سب سے زیادہ تیزی سے حرکت کرنے والی چیز روشنی ہے۔ 1 سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ روشنی کے لحاظ سے چیزوں کے 2 اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے لیومینس اور دوسرا ہوتا ہے نان لیومینس۔ لیومینس آبجیکٹس وچ ایمٹ لائٹ بائی دیئر اون، یعنی وہ چیزیں جو اپنی روشنی خود بنا سکتی ہوں، یعنی کسی دوسری چیز کی روشنی کو ایبزارب کر کے منعکس نہ کریں بلکہ اپنی روشنی خود بنا سکتی ہو، وہ چیزیں لومینس ہے۔ مثال کے طور پر سن اپنی روشنی بناتا ہے، اس طرح اگر کینڈل کوئی موم بتی جلتی ہو تو وہ اپنی روشنی کو پیدا کرتا ہے، اس طرح بلب اپنی روشنی کو پیدا کرتا ہے، تو یہ چیزیں لیومینس ہیں۔ اس کے علاوہ آبجیکٹس دیٹ ڈو ناٹ پروڈیوس دیئر اون لائٹ، یعنی وہ چیزیں جو اپنی روشنی کو خود نہ بنائیں بلکہ دوسری چیزوں کی روشنی کو جو ہے وہ منعکس کریں، تو وہ چیزیں جو ہے وہ نان لومینس ہے۔ مثال کے طور پر چاند بھی روشنی دیتا ہے، لیکن یہ روشنی وہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، یہ اپنی روشنی خود نہیں بنا سکتی۔ اس کے علاوہ پین ہے، چیئر ہے، ووڈ ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ اپنی روشنی خود نہیں بنا سکتی، تو ان چیزوں کو ہم نام دیں گے نان لیومینس آبجیکٹ کا۔ اچھا، اس کے علاوہ پیج نمبر 76 پر ایک ٹاپک ہے ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹس، ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹس اور اوپیک آبجیکٹس۔ ان میں ڈیفرنسز کیا ہے؟ انتہائی ایزی ہے۔ ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹس وہ آبجیکٹس ہیں جس میں کیا ہوتا ہے، لائٹ کین پاس کمپلیٹلی، جس سے روشنی مکمل طور پر دوسری سائڈ میں ٹرانسفر ہوتی ہو، تو وہ ہے ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹ۔ مثال کے طور پر صاف پانی، شیشہ یا ہوا، ان سے لائٹ کمپلیٹلی دوسرے سائڈ پاس ہو سکتا ہے، تو لائٹ، ایئر اور گلاس یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹس ہے، لائٹ ان سے کمپلیٹلی دوسرے سائڈ میں پاس ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹس یعنی یہ وہ آبجیکٹس ہیں جن سے لائٹ پارشلی تھوڑا پاس ہو سکتا ہے دوسرے سائڈ۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے، تھوڑا لائٹ ان سے پاس ہو سکتا ہے، تھوڑا جو ہے اس کے اندر ایبزارب ہوتا ہے یا تھوڑا ریفلیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی روشنی کی تھوڑی سی مقدار اس سے پاس ہو سکتی ہے۔ جس طرح ایک فرسٹڈ گلاس ہے، ٹھیک ہے، کلین گلاس نہیں، ایک ایسا گلاس ہے جو اس کا شیشہ صاف نہ ہو، اور پیپر ہے، کاغذ، دھواں ہے، تو اس سے لائٹ مکملی طور پر دوسرے سائڈ میں پاس نہیں ہو سکتی، تو یہ ہمارے پاس یہ آبجیکٹس
ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे लाइट बिल्कुल डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू, इससे लाइट बिल्कुल भी दूसरी साइड पास नहीं होती। तो ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। जिस तरह स्टोन है, मेटल है, वुड है, तो इन चीज़ों से लाइट बिल्कुल पास नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, एक और टॉपिक है पेज नंबर 78 पर, जिसमें कहा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ शेडो यानी किसी चीज़ का साया किस तरह बनता है। इससे पहले एक बात याद रखना ज़रूरी है कि रोशनी हमेशा स्ट्रेट लाइन में हरकत करेगी, यानी ये अगर इस तरह हरकत करे तो ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इस तरह सीधी जाएगी। इस तरह नहीं हो सकता कि ये इस तरह हो जाए या इस तरह हो जाए। लाइट हमेशा एक सीधे लाइन की तरह हरकत करेगी, ठीक है। तो क्या होता है, मिसाल के तौर पर इसका साया, किसी चीज़ का साया किस तरह बनता है, ये हमारे पास है मिसाल के तौर पर एक कैंडल, और ये रोशनी को पैदा करता है। तो क्या होगा, अगर हम किसी ऐसी चीज़ को इसके रोशनी के सामने रखें, मिसाल के तौर पर मैं इस तरह का एक चीज़ रखता हूँ, एक ट्रायंगल की तरह का, तो इसका शेडो भी बनेगा। इस तरह ट्रायंगल शक्ल का इसका शेडो बनेगा। वो किस तरह, जो ये लाइट इस तरह हरकत करती है तो ये ऑब्जेक्ट तो ओपेक है, और साया जो है, शेडो, ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट का ही बनेगा, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को ब्लॉक करते हैं। तो ये लाइट तो यहाँ पड़ती है लेकिन निकलती नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रोशनी नहीं होगी। अब क्या होगा, ये जो एजेस, इसके जो सिर है, इससे जो रोशनी निकलती है इस तरह, तो वो दूसरी तरफ शेडो या साये का एक शक्ल इस चीज़ का बनाएगा। यानी इस शक्ल वाले हिस्से से रोशनी नहीं निकलेगी, और इसके एजेस जो सिरे हैं उससे रोशनी निकलती है। तो जो जिस हिस्से से, जिस जगह से रोशनी नहीं निकलती, वो वहाँ पर एक साया सा बनाएगा जिसे हम कहेंगे शेडो। तो इस तरीके से शेडोज़ या साया बनते हैं। अच्छा, पेज नंबर 80 पर एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी रोशनी का वापस मुनकिस होना। किसी चीज़ से रोशनी का वापस आने को कहते हैं रिफ्लेक्शन। यानी ये रोशनी नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से अगर वापस आ जाए तो इसे नाम देंगे रिफ्लेक्शन। क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये दूसरी तरफ निकलती है, तो रोशनी का वापस आने को रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सरफेस है, ये रोशनी जा रही है, ये रोशनी इस जिस्म से टकराने के बाद वापस आ जाए तो इसे हम नाम देंगे रिफ्लेक्शन का। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि रिफ्लेक्शन किन सरफेसेस से ज़्यादा होगा। तो ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जो सरफेसेस ज़्यादा स्मूथ यानी हमवार होंगे और चमकदार होंगे, हमवार और चमकदार सरफेसेस, जिस तरह एक मिरर का होता है, एक आईन का होता है, तो उनसे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। अगर कोई सरफेस डल हो और रफ़ हो, ना हमवार हो, तो उन सरफेसेस से रिफ्लेक्शन कम होगी। अच्छा, इस चैप्टर में दूसरा सबसे अहम टॉपिक लाइट यानी रोशनी के बाद दूसरा अहम टॉपिक साउंड या आवाज़ का है। तो आवाज़ क्या है, अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी की एक हालत या एनर्जी की एक किस्म है, और ये आवाज़ पैदा होती है वाइब्रेशंस से। वाइब्रेशंस क्या है, किसी जिस्म का अपने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी वो जगह जहाँ पर वो जिस्म इक्विलिब्रियम, तवाज़ुन में चला जाता है, उस जगह को नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो
वो मीन पोजीशन भी उसको कहा जाता है। तो मीन पोजीशन या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से किसी जिस्म का इर्द गिर्द ऊपर नीचे मुसलसल हरकत को नाम दिया जाता है वाइब्रेशंस या इर्तियाशात का। तो उन इर्तियाशात से क्या होता है कि इर्तियाशात से आवाज़ जो है वो पैदा होती है। एनर्जी की एक किस्म है और किस चीज़ से पैदा होती है? वाइब्रेशंस से पैदा होती है। अच्छा, आवाज़ के पैदा होने और सुनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1, एक वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी वो चीज़ जो वाइब्रेशन करे, वो चीज़ जो वाइब्रेशन करे तो इसे हम नाम देंगे सोर्स ऑफ साउंड का। इसे हम नाम देंगे सोर्स ऑफ साउंड, यानी वो चीज़ जिससे आवाज़ पैदा होती हो तो उसे नाम देंगे वाइब्रेटिंग बॉडी। इसके बाद ये आवाज़ हरकत करे और उस जगह तक हरकत करे जहाँ पर इसे सुना जा सके। तो ये हरकत किस तरह करेगी, कहाँ पर करेगी? तो इसके लिए ज़रूरत होगी एक ज़रिए यानी एक मीडियम की। और ये मीडियम क्या होगा? ये मीडियम होगा पार्टिकल्स, ज़र्रात, या सॉलिड या लिक्विड और या गैस यानी एयर, हवा वगैरह। तो इन चीज़ों की ज़रूरत होगी ताकि जहाँ पर आवाज़ पैदा हो गया उस जगह से ये आवाज़ हरकत करे। अच्छा, अब आवाज़ पैदा भी हो गया, आवाज़ ने हरकत भी की, तो अब क्या होगा? इसे हम नाम देंगे प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, जो कि ये टॉपिक दिया गया है पेज नंबर 81 पर। प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड के ये आवाज़ हरकत किस तरह करेगी? तो आवाज़ हरकत करेगी किसी मीडियम में और वो मीडियम पार्टिकल्स से बनी होगी, एटम्स, मॉलिक्यूल से बनी होगी, जिस तरह सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अच्छा, आवाज़ पैदा भी हो गया, आवाज़ ने हरकत भी की, तो अब आवाज़ सुनने के लिए क्या ज़रूरी है? हियरिंग डिवाइस, यानी वो चीज़ ज़रूरी है जिस पर ये आवाज़ सुनी जा सके, जो आवाज़ को महसूस की जा सके, और वो है एयर्स। अच्छा, तो इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी आवाज़। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर आवाज़ किस तरह पैदा होती है, तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिर्फ जहन क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे लंग्स से जो एयर निकलती है वो एयर हमारे गर्दन के अंदर साउंड बॉक्स या लैरिंक्स के अंदर चला जाता है, वहाँ पर मौजूद है वोकल कॉर्ड्स। हवा के प्रेशर की वजह से ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? ये वाइब्रेट हो जाते हैं। जब ये वाइब्रेट हो जाते हैं तो हमारे नोज़ और हमारे माउथ में आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, ये आवाज़ अब हवा के ज़रिए से, एयर के ज़रिए से हरकत करके हमारे कानों तक चली जाती है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी यानी वो जिस्म जिससे आवाज़ पैदा हो जाए, जो वाइब्रेशंस करे और आवाज़ प्रोड्यूस करे, नंबर 1। फिर ये आवाज़ जाएगी किस चीज़ में? ये जाएगी सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। नंबर 3, इस आवाज़ को महसूस करने के लिए फिर एयर्स का होना ज़रूरी है। तो साउंड को सुनने के लिए इन 3 चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक है पेज नंबर 83 पर, वो है स्पीड ऑफ साउंड एंड डिफरेंट मटेरियल्स, यानी साउंड मुख्तलिफ़ चीज़ों में किस स्पीड से जाएगी, स्लो जाएगी, तेज़ जाएगी। ठीक है, तो यह बात याद रखना ज़रूरी है कि सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा तेज़ जाएगी आवाज़, लिक्विड में सॉलिड से स्लो, जबकि गैसेस से ज़्यादा, जबकि गैसेस में सबसे आहिस्ता आवाज़ सफ़र करेगी या हरकत करेगी। ठीक है, जिस तरह हम मिसाल देते हैं एयर, तो एयर में 340 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 340 मीटर का फासला तय करती है आवाज़, जबकि वाटर में 1 सेकंड में 1500 मीटर का फासला तय करती है। आयरन या लोहे में 1 सेकंड में 5000 मीटर का फासला आवाज़ तय करती है। अच्छा, स्पीड का मतलब है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। स्पीड का मतलब है कि डिस्टेंस कवर्ड
in 1 second, यानी कोई चीज़ 1 सेकंड में जितना फासला तय करती है उसे नाम दिया जाता है स्पीड का। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, पेज नंबर 84 पर मौजूद है। इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत, शिद्दत यानी ये आवाज़ की इंटेंसिटी क्या होगी, तो जितना ऊंचा और बुलंद आवाज़ होगा, लाउडनेस यानी आवाज़ जितना बुलंद होगा तो उसकी इंटेंसिटी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। और आवाज़ की बुलंदी या लाउडनेस जितना कम होगी तो उसकी इंटेंसिटी हम कहेंगे कि ये क्या है, कम है। इसके अलावा आवाज़ लाउडनेस यानी बुलंदी के अलावा आवाज़ जो है वो डिस्टेंस यानी फासले पर भी डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर आवाज़ पैदा होती हो और यहाँ हम सुनते हो, ठीक है, ये हेयरिंग डिवाइस है, ये वाइब्रेटिंग मीडियम है, यहाँ आवाज़ का सोर्स है, यहाँ पर आवाज़ पैदा होती है और यहाँ हम सुनते हैं और फासला है मिसाल के तौर पर 10 मीटर, इसकी बनिस्बत यहाँ पर आवाज़ पैदा होती हो और यहाँ हम सुनते हैं, सुनने वाला यहाँ पर मौजूद है और फासला है 20 मीटर। आवाज़ एक जितना, लाउडनेस एक जितना है लेकिन यहाँ पर फासला कम है, यहाँ पर फासला ज़्यादा है, तो जितना फासला ज़्यादा होगा इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। इंटेंसिटी यहाँ पर आवाज़ इसे थोड़ा थोड़ा आएगा या ये आहिस्ता सुनेगा और ये आवाज़ ज़्यादा क्लियर और तेज़ी के साथ सुनेगा, यानी जितना फासला ज़्यादा होगा इंटेंसिटी कम होगी, फासला कम होगा तो इंटेंसिटी या शिद्दत ज़्यादा होगी। अच्छा, पेज नंबर 85 पर एक टॉपिक है नॉइज़, यानी जिसे हम कहते हैं शोर। शोर क्या है, ये एक नाखुशगवार साउंड है, नाखुशगवार आवाज़ है, अनप्लीजेंट साउंड जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट साउंड में क्या डिफरेंसेस हैं? प्लीजेंट खुशगवार आवाज़, साउंड्स विच वी लाइक टू हेयर, ये वो आवाज़ होती है जिसे हम सुनना पसंद करते हैं, वो आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छा लगे, वो प्लीजेंट साउंड है, इसे हम नाम देते हैं म्यूज़िक का। इसके अलावा अनप्लीजेंट साउंड या नाखुशगवार आवाज़ कौन सी होती है? साउंड्स विच वी डू नॉट लाइक, यानी वो आवाज़ जिसे हम सुनना नहीं चाहते, जिसे हम पसंद नहीं करते, जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, उस आवाज़ को नाम दिया जाता है अनप्लीजेंट, नाखुशगवार आवाज़, और इसे साइंस में नाम दिया जाता है नॉइज़ यानी शोर का। अच्छा, शोर के नुकसानात कौन से हैं, ये टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 86 पर कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़, यानी शोर के नुकसानात कौन से हैं। नंबर 1, कैंट अंडरस्टैंड कन्वर्सेशन, जब दो लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो शोर की वजह से वो समझ नहीं पाते कि ये हमने क्या कहा या क्या सुना। इसके अलावा थिंकिंग प्रोसेस इज़ डिस्टर्ब, हमारे सोच की सलाहियत या अमल को डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा कैन नॉट रिलैक्स और स्लीप वेल, इसकी शोर की वजह से हम रिलैक्स भी नहीं होते अच्छी तरीके से और सो भी नहीं सकते। कैन स्टडी प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से स्टडी भी नहीं कर सकते। डिस्टर्ब्स और बॉडी फंक्शंस, इसके अलावा दिमाग पर असर होने की वजह से, चूँकि दिमाग हमारे जिस्म के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, शोर की वजह से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिससे हमारे दूसरे जो फंक्शंस है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड प्रेशर है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा कैन कंसंट्रेट और अटेंशन, हम अपना तवज्जो किसी ख़ास चीज़ पर मबजूल नहीं कर सकते। अच्छा, लास्ट टॉपिक है पेज नंबर 86 और 87 पर के नॉइज़ पोल्यूशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यूज़ ऑफ हॉर्न्स बी रिस्ट्रिक्टेड, हॉर्न का इस्तेमाल इस तरीके से जो तकलीफ़ दे लोगों को, इस पर बैन किया जाए। अननेसेसरी यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर,
لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ان جگہوں پر جہاں پر ضرورت نہ ہو تو اس پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ اس کے علاوہ یوز آف گڈ کوالٹی سائلنسرز، گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں میں اچھے کوالٹی کا سائلنسر لگا دیا جائے تاکہ وہ شور کی آلودگی کو کم کر سکے۔ اس کے علاوہ جو بس سٹینڈز ہے یا فیکٹریز ہے تو وہ لوگوں کے رہائشی جگہوں سے دور لے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ درختوں کو اگایا جائے۔ درخت کیا کرتے ہیں؟ یہ شور کو، آواز کو ایبزارب کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہوا کو بھی صاف رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک اویئرنیس، لوگوں کو بھی اس کے بارے میں میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبار و نیوز پیپرز وغیرہ کے ذریعے سے یا کانفرنسز وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتا دیا جائے کہ شور جو ہے ان کے یہ نقصانات ہے، یہ اس طریقے سے ہم کم کر سکتے ہیں، تو لوگوں کے درمیان ایک شعور کو بھی اجاگر کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ تو یہ تھی 6 چیپٹر جو کہ لائٹ اور ساؤنڈ کے بارے میں تھی۔ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ لائٹ اور ساؤنڈ کا ایکسرسائز سالو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس الاٹ۔